Hello friends, hope all of you are doing great. I am Mamta Nagat. I make videos on various visa application processes and also I make videos on various study programs for public universities of Germany. I also make sometimes videos on the private universities of Germany and also the Schengen area. In this video, we are going to discuss about how to fill up an application form for Schengen visa Germany. Although the application form is same for the entire Schengen area, for 26 countries the Schengen visa form is same, but in this particular case, since we had obtained the visa very recently, so I am sharing with you the visa application form which we had filled up for Germany. This visa is granted for the period of 1st February 2022 till 16th May 2022. Let me tell you friends that the visa is granted for only 90 days in 6 months period, but since it is a corona time and because of some contingencies the travel plans might change, so VFS Global has given 15 days of grace. That means they have given visa from 1st May to 16th May with a limit of 90 days stay in Schengen area. Since we will be my husband would be staying maximum in Germany, so the visa is granted from German consulate. So friends, let us begin the video. In this video, I am going to share the entire application process in which I am going to share the personal details which have been filled from step 1 till end, what we have filled in each and every column. This application form is available free of cost on the Google website. So I will give you the links in the description box. If you want to have the advantage of this video, please see this video till end. So let us start. The application form is somewhat like this. When you submit this application form to VFS Global, don't staple it and don't sign it. They will get it signed in front of their official desk. In serial number 1, surname और फैमिली नेम, इट इज़ दी आपकी जो कास्ट होती है, जैसे इन दिस केस इट इज़ नागरथ. सेकेंड, सरनेम एट बर्थ, अगेन इट इज़ नागरथ. फर्स्ट नेम, we had a first name and the second name, so you have to write first name and middle name together. In our case it is Ashok Kumar. Date of birth, day, month and year, you have to write like this. Place of birth, you have to give your place of birth. Place of birth you have to write which you have written in your passport. So my advice is that when you fill up this form, either you keep the copy of the passport or the original passport in front of you when you are filling up this application form. Serial number 6, country of birth. Again you have to pick up from passport. In our case it is India. Current nationality, again from passport, India. Nationality at birth if different. So in most of the cases it will be same. In my case it is India. Sex, male, because this form is filled up for my husband. Marital status, married. If you are unmarried, you can write unmarried. Serial number 10, in the case of minors, अगर आप बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं, minors less than 18 years of age, then you have to write surname, first name, address if different from the applicants, and nationality of पेरेंटल अथॉरिटी और लीगल गार्जियन. तो आप यहाँ पे अगर आपका एड्रेस जिस बच्चे के लिए आप भर रहे हैं उसका एड्रेस अलग है तो लिखिएगा, नहीं तो उसका सरनेम फर्स्ट नेम लिख दीजिए. एंड नेशनैलिटी ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी और लीगल गार्जियन, तो उनका यहाँ पे नेशनैलिटी भी आएगा. दैट इज़ इन केस ऑफ द माइनर्स ओनली. तो सीरियल नंबर 10 इज़ ओनली फॉर in case you are taking your children with you
otherwise this has not to be filled. Like in this case, this is not filled because it is for an adult. Serial number 11, national identity number where applicable. So since we don't have any national identity number, we have left this as blank. Serial number 12, type of travel document, that is ordinary passport. So it depends आपका passport, mostly it is ordinary passport. अगर किसी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो वो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिखे. नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर आएगा. फॉर सीरियल नंबर 14, डेट ऑफ इशू, यहाँ पर डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट आएगा. तो जैसा मैंने आपको बताया, पासपोर्ट को सामने रखकर ही आप इसको भरिए. फिर वैलिड अंटिल, ये भी पासपोर्ट के ही डिटेल्स हैं कि पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो लिख दीजिए. फिर इशूड बाय, कहाँ से इशू हुआ, ये भी पासपोर्ट पर ही मिलेगा आपको. इन आवर केस इट इज़ दिल्ली एंड इंडिया. उसके बाद में 17A, एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस. यहाँ पे आपको अपना होम एड्रेस लिखना है. ये होम एड्रेस आप अपने पासपोर्ट से ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर करी है वो लिख दीजिए. VFS ग्लोबल पे आप एक ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो वाली ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए. टेलीफोन नंबर, आपको अपना मोबाइल का टेलीफोन नंबर देना है, क्योंकि टेलीफोन नंबर पे वो लोग आपको फ़ोन करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. सीरियल नंबर 18, रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी. अगर ये यहाँ पे आपकी कोई और भी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है तो आप यहाँ पे उसके डिटेल्स लिखिए. तो यहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए. सीरियल नंबर 18A, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है अगर आपके पास में किसी और कंट्री की रेजिडेंसी है तब, अदरवाइज ये खाली रहेगा. सीरियल नंबर 18B, वैलिड अंटिल, ये भी खाली रहेगा, तभी लिखना है यहाँ पे अगर आपके पास में किसी और कंट्री की रेजिडेंसी है तब. देन सीरियल नंबर 19, करंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपको अपनी करंट ऑक्यूपेशन लिखनी है, आप क्या करते हैं. अगर सपोज़ आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखिए, आप अपनी किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस लिखिए. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखिए. अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट. यहाँ पर आपकी जो ऑक्यूपेशन, आप जो काम करते हैं वो लिखिएगा और उनका एड्रेस लिखिएगा. सो लाइक इन आवर केस वी हैव रिटन प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट, एंड फिर उसका एड्रेस हमने लिखा हाई कोर्ट का, और फिर उसमें कंप्लीट एड्रेस लिखना है. इसके बाद में सीरियल नंबर 21, मेन पर्पस ऑफ द जर्नी. इन आवर केस वी हैव रिटन विजिट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स. यहाँ पे कोई और पर्पस भी लिख सकते हैं. अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म भी लिख सकते हैं. फिर मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, तो मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इस बारी हमने सिर्फ जर्मनी लिखा, क्योंकि अभी पता नहीं कोविड के टाइम में अलाउड है या नहीं है. तो क्योंकि ये 2022 में so many countries have restricted the travel in the Schengen area, तो हमने सिर्फ जर्मनी लिखा. अगर आप कहीं और दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं तो वहाँ वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं. मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आप जिस कंट्री में मैक्सिमम स्टे करेंगे सबसे पहले आप वहीं जाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे. मैंने यहाँ पे जर्मनी लिखा. नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिखा, ऑप्शंस होते हैं तो मैंने मल्टीपल एंट्री लिखा. सीरियल नंबर 25, ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे ऑफ और ट्रांजिट इंडिकेट नंबर ऑफ डेज. क्योंकि शेंजन वीज़ा मैक्सिमम 90 डेज़ का मिलता है 6 मंथ्स में, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ के लिए ही वीज़ा लिया है, दैट इज़ 90 डेज़. देन सीरियल नंबर 26, शेंजन वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years. इसमें अगर आपको पहले शेंजन वीज़ा इशू हुआ है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए. फिर वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड अंटिल, सीरियल नंबर 26A एंड 26B. यहाँ पे जो पहले वीज़ा इशू हुआ है उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है, अगर पहले कभी शेंजन वीज़ा इशू हुआ है तब, अदरवाइज ब्लैंक छोड़िए. सीरियल नंबर 27, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग
फॉर ए शेंजन वीज़ा। अगर आपके पहले फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हो गए हैं, वो तभी कलेक्ट होंगे जब आपने पहले शेंजन वीज़ा लिया है, तो आप यहाँ पे यस लिखिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़िए। सीरियल नंबर 27, डेट इफ़ नोन। तो क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक प्रिंट्स ये पहले हमने दिए हुए थे, तो हमने यहाँ ऊपर वाले में तो यस लिखा, मगर नीचे वाले में मुझे डेट नहीं पता थी, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल नंबर 28, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल इशूड बाय। सो इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ा। सीरियल नंबर 28A, फ्रॉम, वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड अंटिल, इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ा। सीरियल नंबर 29, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन द शेंजन एरिया। तो जिस डेट के लिए मुझे वीज़ा चाहिए वो मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ पे डेट लिखी 1 फरवरी 2022, और इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंजन एरिया मैंने लिखा 1 मई 2022। ये पूरे 90 दिन बनते हैं। Serial number 31A, surname and first name of the inviting person in the member states, if not applicable, name of hotel or temporary accommodation in the member state। तो इसमें जो स्पॉन्सरर जो इनवाइटिंग पर्सन है उसका सरनेम और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम और उसकी जो first name of inviting person in the member state, if not applicable, name of hotel of, in this I have written the surname of the inviting person, that is my son, name लिखा है, उसकी date of birth लिखी है, और उसका दिल्ली एंड इंडियन ये मैंने लिखा है। Then serial number 31B, address and email address of इनवाइटिंग पर्सन, होटल और टेम्पररी अकोमोडेशन। तो यहाँ पे यहाँ पर जहाँ पे जो आपका इनवाइटिंग पर्सन है जो जर्मनी में रह रहा है उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आएगा, लाइक आई हैव रिटन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ डसेल्डॉर्फ वेयर माय सन इज स्टेइंग, और उसकी ईमेल आईडी मैंने दी है यहाँ पर, जीमेल आईडी ऑफ माय सन। सीरियल नंबर 31C, टेलीफोन एंड टेलीफैक्स। यहाँ पर टेलीफोन नंबर ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन आएगा, क्योंकि ये सारे इनवाइटिंग पर्सन की डिटेल्स हैं यहाँ पे। सीरियल नंबर 32A में नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिकॉज द इन्विटेशन इज फ्रॉम द सन, सो यहाँ पे ये ब्लैंक है। 32B, टेलीफोन एंड टेलीफैक्स, यदि किसी कंपनी ने इनवाइट नहीं किया है तो ये भी ब्लैंक है। सीरियल नंबर 32C ऑल्सो इज ब्लैंक, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स आ रहे हैं। अगर कंपनी ने इनवाइट किया है तो ये कंपनी ने, क्योंकि इनविटेशन नहीं है, दिस इज द इनविटेशन, पर्सनल इनविटेशन, वो हमने डिटेल्स ऊपर दे दिए। फिर सीरियल नंबर 33 में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस लिए जा रहे हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर। इट सेज कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। ये पूछ रहे हैं कि आप अपना कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और स्टे किस तरह से कवर करेंगे, तो मैंने इसमें चेक मार्क करना है कि हम कैसे कवर करेंगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं, जो आपके लिए सुटेबल है वो आप उसको चेक मार्क कर दीजिए। लाइक इन अवर केस वी हैव चेक मार्क मीन्स ऑफ सपोर्ट, कैश, देन प्रीपेड अकोमोडेशन, बिकॉज रेंटल अकोमोडेशन है बेटे के पास में, तो प्रीपेड अकोमोडेशन हो गई। फिर उसके बाद में दे आर आस्किंग अदर्स प्लीज स्पेसिफाई। अदर्स प्लीज स्पेसिफाई में हमने लिख दिया इनवाइटेड बाय सन इन डसेल्डॉर्फ। फिर उसके बाद में फिर हमने एक चीज़ और लिखी कि दे आर आस्किंग स्पॉन्सर बाय ए स्पॉन्सर, होस्ट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज स्पेसिफाई। हाँ जी, तो क्योंकि ये सन ने इनवाइट किया तो हमने इसमें डिटेल्स दे दिए कि रेफर टू इन फील्ड 31 एंड 32 को रेफर कर लीजिए, उस पर चेक मार्क किया, फिर कैश पे किया, फिर उसके बाद में इनवाइटेड बाय सन इन डसेल्डॉर्फ, इस तरह से लिखा। ये इस तरह से आता है। सीरियल नंबर 34, पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन EU, तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। देन आफ्टर दैट सीरियल नंबर 35, फैमिली रिलेशनशिप विद एन EU, EEA और CH सिटीजन, ये भी मैंने ब्लैंक छोड़ा। देन
उसके बाद में प्ले यहाँ पर जो सीरियल नंबर 36 और सीरियल नंबर 37 है, ये इसको आप ब्लैंक ले जाइए। जब आप VFS ग्लोबल में जाएंगे तभी उस टाइम में वो आपसे लिखवा लेंगे। प्लेस एंड डेट उसी टाइम में लिख दीजिए और सिग्नेचर भी उसी टाइम में कर दीजिए। उसके बाद में फॉर्म जब आप पूरा फिलअप कर लेते हैं तो एक ये पेज आता है। अगर ऑनलाइन भरा था, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो इसलिए ये पेज आया, और फिर उसके बाद में ये वाला पेज आया। इस पेज में यहाँ पर प्लेस एंड डेट और यहाँ पे सिग्नेचर है, ये भी वहीं पर जाकर करिएगा VFS ग्लोबल में। इसके बाद में जब, क्योंकि ये फॉर्म मैंने ऑनलाइन भरा था तो इस तरह से ये लास्ट पेज आता है। और उसके बाद में एक अंडरटेकिंग होती है, अंडरटेकिंग है जो कि एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। अगर आपके साथ में माइनर जा रहा है, अगर आप बच्चे को साथ में लेके जा रहे हो, तब उस केस में ये वाला फॉर्म भी भरा जाएगा। अदरवाइज सिर्फ एक अंडरटेकिंग होती है, अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जितने भी आपने इसमें डिटेल्स दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, दे आर करेक्टली डन एंड दे आर करेक्ट एंड ट्रू टू योर बेस्ट ऑफ नॉलेज। वो वाला एक अंडरटेकिंग आपको अटैच मैंडेटरी है, करना है। उसके बाद में ये चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये भी VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर शेंजन वीज़ा के साथ में दिया हुआ है। दिस इज़ अ चेकलिस्ट फॉर शेंजन वीज़ा फॉर पर्पस ऑफ विजिट। मैं आपको बता दूं कि शेंजन वीज़ा जो है बिजनेस पर्पस के लिए, फैमिली विजिट के लिए, टूरिज्म के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए शेंजन वीज़ा इशू होता है। तो आपका जो आपका पर्पस है आप वो लिख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि शेंजन वीज़ा जब इशू होता है तो यू आर परमिटेड टू विजिट 26 कंट्रीज़, जो कि आप, अगर आपके ऑलरेडी प्लान्स हैं तो आप लिख सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और जितना मैक्सिमम स्टे जिस कंट्री में है आप उस एम्बेसी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करिए। अब मैं आपको चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्कस कर देती हूँ फटाफट। सो लेट अस रीड इट आउट। नंबर 1 इज़ द वैलिड पासपोर्ट। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आपकी ट्रैवल डेट, जो लास्ट ट्रैवल डेट है उसके बाद में कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए वो। आपको जब ये पासपोर्ट लगाना है तो उसके सारे पेजेस लगाने हैं पासपोर्ट के, जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड, ये आप वहीं पर जाके साइन कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म अपने साथ लेके जाइए। पर्सनल कवरिंग लेटर बनाइए, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल आउट किया है, आप मेरी वो वीडियो देखिएगा। मैं इस वीडियो के साथ में उसको अटैच कर दूँगी। फॉर माइनर्स, इफ़ ट्रैवलिंग अनअकम्पनीड बाय पेरेंट, कंसर्न लेटर साइंड बाय बोथ पेरेंट्स एंड एप्लीकेंट्स। अगर बच्चा अकेला विजिट कर रहा है, 18 साल से छोटा है, उस केस में ये कंसर्न लेटर ऑफ द पेरेंट्स लगाना है। Invitation from Germany with a copy of the passport, first and last page of Indian passport, and her residence permit for Germany. Leave letter of your company if employed, and no objection certificate of school or university. इसमें इन्विटेशन लेटर, जो आपसे जर्मनी का आपका स्पॉन्सर है, वो इन्विटेशन लेटर लगाइए, उसका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज लगाइए। फ्लाइट रिजर्वेशन, रेल टिकट, इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है। फ्लाइट आइटिनरी आपको अटैच करनी होती है, आप उसमें देखिए फ्लाइट आइटिनरी किस तरह से बनाएंगे। देन प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ऑफ योर एंटायर स्टे इन शेंजन एरिया। आपको अगर स्पॉन्सर्ड है तो रेंटल एग्रीमेंट लगाना होगा जो आपका इन्वाइटिंग पर्सन है, या आपको होटल बुकिंग्स दिखानी होगी। उसके बाद में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ICICI लॉम्बार्ड से लिया था हमने 90 डेज़ का। और फिर कॉपी ऑफ पासपोर्ट डेटा पेज, 1 कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट डेटा पेज, इसमें आपको पासपोर्ट के सारे ट्रैवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स लगाना है, फोटोकॉपी। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स लगाना है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस लगाना है, प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस, अगर अनमैरिड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, एंड 2 पासपोर्ट पिक्चर्स लगानी हैं, और एज अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस। सो ये जो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग जो वीडियो बनाई है, आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। इसी वीडियो के साथ में मैं अटैच कर दूँगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
Or thank you so much for listening to this video and giving your valuable time. And in case you have any question, you are most welcome to write in the comment box. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much.